صحیح بخاری کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان باب بنی اسرائیل کے واقعات کا بیان حدیث نمبر 3451 ترجمہ اور حذیفہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ایک شخص کی موت کا جب وقت آ گیا اور وہ اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میری موت ہو جائے تو میرے لیے بہت ساری لکڑیاں جمع کرنا اور ان میں آگ لگا دینا۔ جب آگ میرے گوشت کو جلا چکے اور آخری ہڈی کو بھی جلا دے تو ان جلی ہوئی ہڈیوں کو پیس ڈالنا اور کسی تند ہوا والے دن کا انتظار کرنا اور ایسے کسی دن میری راکھ کو دریا میں بہا دینا۔ اس کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی راکھ کو جمع کیا اور اس سے پوچھا ایسا تو نے کیوں کروایا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ تیرے ہی خوف سے اے اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ عقبہ بن عمرو نے کہا کہ میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا تھا کہ یہ شخص کفن چور تھا۔ صحیح بخاری کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان باب بنی اسرائیل کے واقعات کا بیان حدیث نمبر 3452 ترجمہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ایک شخص کی موت کا جب وقت آ گیا اور وہ اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میری موت ہو جائے تو میرے لیے بہت ساری لکڑیاں جمع کرنا اور ان میں آگ لگا دینا۔ جب آگ میرے گوشت کو جلا چکے اور آخری ہڈی کو بھی جلا دے تو ان جلی ہوئی ہڈیوں کو پیس ڈالنا اور کسی تند ہوا والے دن کا انتظار کرنا اور ایسے کسی دن میری راکھ کو دریا میں بہا دینا۔ اس کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی راکھ کو جمع کیا اور اس سے پوچھا ایسا تو نے کیوں کروایا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ تیرے ہی خوف سے اے اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ عقبہ بن عمرو نے کہا کہ میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا تھا کہ یہ شخص کفن چور تھا۔ صحیح بخاری کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان باب بنی اسرائیل کے واقعات کا بیان حدیث نمبر 3453 ترجمہ مجھ سے بشر بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھ کو معمر اور یونس نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا، انہیں عبید اللہ بن عبداللہ نے خبر دی کہ عائشہ اور ابن عباس نے بیان کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزا کی حالت طاری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر چہرہ مبارک پر بار بار ڈال لیتے، پھر جب شدت بڑھتی تو اسے ہٹا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں فرمایا تھا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصاری پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو ان کے سے ڈرانا چاہتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان باب بنی اسرائیل کے واقعات کا بیان حدیث نمبر 3454 ترجمہ مجھ سے بشر بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھ کو معمر اور یونس نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا، انہیں عبید اللہ بن عبداللہ نے خبر دی کہ عائشہ اور ابن عباس نے بیان کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزا کی حالت طاری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر چہرہ مبارک پر بار بار ڈال لیتے، پھر جب شدت بڑھتی تو اسے ہٹا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں فرمایا تھا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصاری پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو ان کے سے ڈرانا چاہتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان باب بنی اسرائیل کے واقعات کا بیان حدیث نمبر 3455 ترجمہ مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا کہ ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے فرات قزار نے بیان کیا، انہوں نے ابو حازم سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں ابو ہریرہ کی مجلس میں 5 سال تک بیٹھا ہوں۔ میں نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاسی رہنمائی بھی کیا کرتے تھے، جب بھی ان کا کوئی نبی ہلاک ہو جاتا تو دوسرے ان کی جگہ موجود ہوتے، لیکن یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہم میرے نائب ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ان کے متعلق آپ کا ہمیں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس سے بیعت کر لو بس اسی کی وفاداری پر قائم رہو اور ان کا جو حق ہے اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن ان کی رعایا کے بارے میں سوال کرے گا۔ صحیح بخاری کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان باب بنی اسرائیل کے واقعات کا بیان حدیث نمبر 3456 ترجمہ
हमसे सईद बिन अबी मरियम ने बयान किया, कहा हमसे अबू गुसान ने बयान किया, कहा कि मुझसे ज़ैद बिन असलम ने बयान किया, उनसे अता बिन यासार ने और उनसे अबू सईद ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग पहले इम्तों के तरीक़ों की कदम बकदम पैरवी करोगे, यहाँ तक कि अगर वो लोग किसी साहिना के सुराख में दाखिल हुए तो तुम भी इसमें दाखिल होगे। हमने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया आपकी मुराद पहली इम्तों से यहूद व निसारी हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर कौन हो सकता है? सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब बनी इसराइल के वाक़यात का बयान। हदीस नंबर 3457। तर्जुमा। हमसे इमरान बिन मैसरा ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वारिस ने बयान किया, कहा हमसे खालिद ने, उनसे अबू क़लाबा ने और उनसे अनस ने बयान किया कि नमाज के लिए ऐलान के तरीक़े पर बहस करते वक्त सहाबा ने आग और नाक़ूस का जिक्र किया, लेकिन बाज़ ने कहा कि ये तो यहूद व निसारी का तरीक़ा है। आखिर बिलाल को हुक्म हवा की अज़ान में कलमात दो दफ़ा कहीं और तकबीर में एक दफ़ा। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब बनी इसराइल के वाक़यात का बयान। हदीस नंबर 3458। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ ने बयान किया, हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे अमिश ने बयान किया, उनसे अबुलसा ने बयान किया, उनसे मुसर्रुख ने बयान किया कि आयशा कोख पर हाथ रखने को नापसंद करती थीं और फरमाती थीं कि इस तरह यहूद करते हैं। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब बनी इसराइल के वाक़यात का बयान। हदीस नंबर 3459। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे लीस ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे नाफ़ा ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा ज़माना पिछली इम्तों के मुकाबले में ऐसा है जैसे असर से मग़रिब तक का वक्त है। तुम्हारी मिसाल यहूद व निसारी के साथ ऐसी है जैसे किसी शख्स ने कुछ मज़दूर लिए और कहा कि मेरा काम आधे दिन तक कौन एक क़ीरात की उजरत पर करेगा। यहूद ने आधे दिन तक एक क़ीरात की मजदूरी पर काम करना तय कर ली। फिर उस शख्स ने कहा कि आधे दिन से असर की नमाज तक मेरा काम कौन शख्स एक क़ीरात की मजदूरी पर करेगा। अब निसारी एक क़ीरात की मजदूरी पर आधे दिन से असर के वक्त तक मजदूरी करने पर तैयार हो गए। फिर उस शख्स ने कहा कि असर की नमाज से सूरज डूबने तक दो क़ीरात पर कौन शख्स मेरा काम करेगा। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो तुम्ही हूँ जो दो क़ीरात की मजदूरी पर असर से सूरज डूबने तक काम करोगे। तुम आगाह रहो कि तुम्हारी मजदूरी दुगनी है। यहूद व निसारी इस फैसला पर गुस्सा हो गए और कहने लगे कि काम तो हम ज़्यादा करें और मजदूरी हमें को कम मिले। अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि हमने तुम्हें तुम्हारा हक़ देने में कोई कमी की है। इन्होंने कहा कि नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर ये मेरा फ़ज़ल है, मैं जिसे चाहूँ ज़्यादा दूँ। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब बनी इसराइल के वाक़यात का बयान। हदीस नंबर 3460। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे इमरू ने, उनसे ताउस ने, उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि मैंने उम्र से सुना, इन्होंने कहा अल्लाह ताला फलों को तबाह करे। इन्हें किया मालूम नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, यहूद पर अल्लाह की लानत हो, उनके लिए चर्बी हराम हुई तो इन्होंने इसे पिघला कर बेचना शुरू कर दी। इस रिवायत को इब्न अब्बास के साथ जाबिर और अबू हरीरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब बनी इसराइल के वाक़यात का बयान। हदीस नंबर 3461। तर्जुमा। हमसे अबू आसिम ज़हाक बिन मुखलिद ने बयान किया, कहा हमको ओज़ाई ने ख़बर दी, कहा हमसे हस्सान बिन अतिया ने बयान किया, उनसे अबू कबशा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा पैगाम लोगों को पहुँचाओ। अगरचे एक ही आयत हो और बनी इसराइल के वाक़यात तुम बयान कर सकते हो, इनमें कोई हरज नहीं, और जिसने मुझ पर कसदा झूठ बंधा तो उसे अपने जहन्नम के ठिकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब बनी इसराइल के वाक़यात का बयान। हदीस नंबर 3462। तर्जुमा। हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि मुझसे इब्राहिम बिन साद ने बयान किया, उनसे सालेह ने, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, उनसे अबू सलिमा ने बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूद व निसारी दाढ़ी वगैरह में ख़िज़ाब नहीं लगाते, तुम लोग इसके ख़िलाफ़ तरीक़ा इख्तियार करो, यानी ख़िज़ाब लगाया करो। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब बनी इसराइल के वाक़यात का बयान। हदीस नंबर 3463। तर्जुमा।
मुझसे मोहम्मद ने बयान किया, कहा मुझसे हुज्जाज ने बयान किया, कहा हमसे जरीर ने बयान किया, उनसे हुस्न ने कहा हमसे जंदब बिन अब्दुल्लाह ने उसी मस्जिद में बयान किया। हुस्न ने कहा कि इन्होंने जब हमसे बयान किया हम उसे भूले नहीं और न हमें इसका अंदेशा है कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इस हदीस की निस्बत गलत की होगी। इन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिछले ज़माने में एक शख्स के हाथ में जख्म हो गया था और उसे इससे बड़ी तकलीफ थी। आखिर उसने छुरी से अपना हाथ काट लिया, उसका नतीजा ये हवा कि खून बहने लगा और उसी से वो मर गई। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे बंदे ने खुद मेरे पास आने में जल्दी की, इसलिए मैंने भी जन्नत को इस पर हराम कर दी। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब बनी इसराइल के एक कोढ़ी और एक नाबीना और एक गंजे का बयान। हदीस नंबर 3464। तर्जुमा मुझसे अहमद बिन इसहाक ने बयान किया, कहा हमसे इमरू बिन आसिम ने बयान किया, उनसे हमाम ने बयान किया, उनसे इसहाक बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा मुझसे अबदाल रहमान बिन अबी हमजा ने बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। दूसरी सनद और मुझसे मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन रुजा ने बयान किया, इन्हें हमाम ने खबर दी, उनसे इसहाक बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, इन्हें अबदाल रहमान बिन अबी उमरा ने खबर दी और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 3 शख्स थे, एक कोढ़ी, दूसरा अंधा और तीसरा गंजा। अल्लाह ताला ने चाहा कि उनका इम्तिहान ले, चुनाचा अल्लाह ताला ने उनके पास एक फरिश्ता भेजा। फरिश्ता पहले कोढ़ी के पास आया और इससे पूछा कि तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है। इसने जवाब दिया कि अच्छा रंग और अच्छी चमड़ी, क्योंकि मुझसे लोग परहेज करते हैं। बयान किया कि फरिश्ते ने इस पर अपना हाथ फेरा तो इसकी बीमारी दूर हो गई और इसका रंग भी खूबसूरत हो गया और चमड़ी भी अच्छी हो गई। फरिश्ते ने पूछा, किस तरह का माल तुम ज़्यादा पसंद करोगे। इसने कहा कि ऊँट, या उसने गाय कही। इसहाक बिन अब्दुल्लाह को इस सिलसिले में शक था कि कोढ़ी और गंजे दोनों में से एक ने ऊँट की ख्वाहिश की थी और दूसरे ने गाय की। चुनाचा इसे हामिला औनटनी दी गई और कहा गया कि अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत देगा। फिर फरिश्ता गंजे के पास आया और इससे पूछा कि तुम्हें क्या चीज़ पसंद है। इसने कहा कि उम्दा बाल और मौजूदा ऐब मेरा ख़त्म हो जाए, क्योंकि लोग इसकी वजह से मुझसे परहेज करते हैं। बयान किया कि फरिश्ते ने इसके सर पर हाथ फेरा और इसका ऐब जाता रहा और इसके बजाय उम्दा बाल आ गए। फरिश्ते ने पूछा, किस तरह का माल पसंद करोगे। इसने कहा कि गाय। बयान किया कि फरिश्ते ने उसे हामिला गाय दे दी और कहा कि अल्लाह ताला इसमें बरकत देगा। फिर अंधे के पास फरिश्ता आया और कहा कि तुम्हें क्या चीज़ पसंद है। इसने कहा कि अल्लाह ताला मुझे आँखों की रोशनी दे दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। बयान किया कि फरिश्ते ने हाथ फेरा और अल्लाह ताला ने उसकी बीनाई उसे वापस दे दी। फिर पूछा कि किस तरह का माल तुम पसंद करोगे। इसने कहा कि बकरियों। फरिश्ते ने उसे हामिला बकरी दे दी। फिर 3 जानवरों के बच्चे पैदा हुए, यहाँ तक कि कोढ़ी के ऊँटों से इसकी वादी भर गई, गंजे की गाय बैल से इसकी वादी भर गई और अंधे की बकरियों से इसकी वादी भर गई। फिर दोबारा फरिश्ता अपनी उसी पहली शक्ल में कोढ़ी के पास आया और कहा कि मैं एक निहायत मिस्कीन वाओ फ़कीर आदमी हूँ। सफ़र का तमाम सामान वाओ असबाब ख़त्म हो चुका है और अल्लाह ताला के सिवा और किसी से हाजत पूरी होने की उम्मीद नहीं, लेकिन मैं तुमसे उसी ज़ात का वासिता देकर जिसने तुम्हें अच्छा रंग और अच्छा चमड़ा और माल अता किया, एक ऊँट का सवाल करता हूँ जिससे सफ़र को पूरा कर सकूँ। इसने फरिश्ते से कहा कि मेरे ज़िम्मा हुकूक़ और बहुत से हैं। फरिश्ता ने कहा, गालिबन मैं तुम्हें पहचानता हूँ, क्या तुम्हें कोढ़ की बीमारी नहीं थी जिसकी वजह से लोग तुमसे घिन खाते थे। तुम एक फ़कीर और खलाश थे, फिर तुम्हें अल्लाह ताला ने ये चीज़ें अता कीं। इसने कहा कि ये सारी दौलत तो मेरे बाप दादा से चली आ रही है। फरिश्ते ने कहा कि अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह तुम्हें अपनी पहली हालत पर लुटा दे। फिर फरिश्ता गंजे के पास अपनी उसी पहली सूरत में आया और इससे भी वही दरख्वास्त की और उसने भी वही कोढ़ी वाला जवाब दिया। फरिश्ते ने कहा कि अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह ताला तुम्हें अपनी पहली हालत पर लुटा दे। इसके बाद फरिश्ता अंधे के पास आया अपनी उसी पहली सूरत में और कहा कि मैं एक मिस्कीन आदमी हूँ, सफ़र के तमाम सामान ख़त्म हो चुके हैं और सिवा अल्लाह ताला के किसी से हाजत पूरी होने की तवक्को नहीं। मैं तुमसे इस ज़ात का वासिता देकर जिसने तुम्हें तुम्हारी बीनाई वापस दी है, एक बकरी मांगता हूँ जिससे अपने सफ़र की ज़रूरियत पूरी कर सकूँ। अंधे ने जवाब दिया कि वाकई में अंधा था और अल्लाह ताला ने मुझे अपने फ़ज़ल से बीनाई अता फ़रमाई और वाकई में फ़कीर वाओ मुहताज था और अल्लाह ताला ने मुझे मालदार बनाया। तुम जितनी बकरियाँ चाहो ले सकते हो, अल्लाह की कसम जब तुमने अल्लाह का वासिता दिया है तो जितना भी तुम्हारा जी चाहे ले जाओ, मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं रोक सकता।
फरिश्ते ने कहा कि तुम अपना माल अपने पास रखो, ये तो सिर्फ इम्तिहान था और अल्लाह ताला तुमसे राज़ी और खुश है और तुम्हारे दोनों साथियों से नाराज़ है। सही बुखारी। किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब गार वालों का किस्सा। हदीस नंबर 3465। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन खलील ने बयान किया, कहा हमको अली बिन मसहर ने खबर दी, इन्हीं उबैदुल्लाह बिन उम ने, इन्हीं नाफा ने और इन्हीं इब्न उम ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिछले ज़माने में बनी इसराइल में से 3 आदमी कहीं रास्ते में जा रहे थे कि अचानक बारिश ने इन्हें आ लिया। वो तीनों पहाड़ के एक खूह गार में घुस गए। जब वो अंदर चले गए तो गार का मुंह बंद हो गया। अब तीनों आपस में यूं कहने लगे कि अल्लाह की कसम, हमें इस मुसीबत से अब तो सिर्फ सच्चाई ही निजात दिलाएगी। बेहतर ये है कि अब हर शख्स अपने किसी ऐसे अमल को बयान करके दुआ करे जिसके बारे में उसे यकीन हो कि वो खालिस अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए किया था। चुनाचा एक ने इस तरह दुआ की, ऐ अल्लाह, तुझको खूब मालूम है कि मैंने एक मजदूर रखा था जिसने एक फ़र्क 3 सा चावल की मजदूरी पर मेरा काम किया था, लेकिन वो शख्स गुस्सा में आकर चला गया और अपने चावल छोड़ गया। फिर मैंने इस एक फ़र्क चावल को लिया और इसकी काश्त की। इससे इतना कुछ हो गया कि मैंने पैदावार में से गाय बैल खरीद लिए। उसके बहुत दिन बाद वही शख्स मुझसे अपनी मजदूरी मांगने आया। मैंने कहा कि ये गाय बैल खड़े हैं, इनको ले जा। इसने कहा कि मेरा तो सिर्फ एक फ़र्क चावल तुम पर होना चाहिए था। मैंने इससे कहा ये सब गाय बैल ले जा, क्योंकि उसे एक फ़र्क की आमदनी है। आखिर वो गाय बैल लेकर चला गया। पस अल्लाह, अगर तू जानता है कि ये ईमानदारी मैंने सिर्फ तेरे डर से की थी तो गार का मुंह खोल दे। चुनाचा उसी वक्त वो पत्थर कुछ हट गया। फिर दूसरे ने इस तरह दुआ की, ऐ अल्लाह, तुझे खूब मालूम है कि मेरे माँ बाप जब बूढ़े हो गए तो मैं इनकी खिदमत में रोज़ाना रात में अपनी बकरियों का दूध लाकर पिलाया करता था। एक दिन इत्तिफाक से मैं देर से आया तो वो सो चुके थे। इधर मेरे बीवी और बच्चे भूख से बलबला रहे थे, लेकिन मेरी आदत थी कि जब तक वालिदैन को दूध ना पिला लूं, बीवी बच्चों को नहीं देता था। मुझे इन्हें बेदार करना भी पसंद नहीं था और छोड़ना भी पसंद ना था, क्योंकि यही उनका शाम का खाना था और इसके ना पीने की वजह से वो कमज़ोर हो जाता। बस मैं उनका वहीं इंतज़ार करता रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई। बस अगर तेरे इल्म में भी मैंने ये काम तेरे खौफ की वजह से किया था तो हमारी मुश्किल दूर कर दे। उस वक्त वो पत्थर कुछ और हट गया और अब आसमान नज़र आने लगा। फिर तीसरे शख्स ने यूं दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरी एक चचाज़ाद बहन थी जो मुझे सबसे ज़्यादा महबूब थी। मैंने एक बार इससे सोहबत करनी चाहिए, उसने इनकार किया, मगर इस शर्त पर तैयार हुई कि मैं इसे 100 अशरफी ला कर दे दूँ। मैंने ये रकम हासिल करने के लिए कोशिश की। आखिर वो मुझे मिल गई तो मैं इसके पास आया और वो रकम इसके हवाले कर दी। इसने मुझे अपने नफ्स पर कुदरत दे दी। जब मैं उसके दोनों पाँव के दरमियान बैठ चुका तो उसने कहा कि अल्लाह से डर और मेहर को बगैर हक़ के ना तोड़। मैं ये सुनते ही खड़ा हो गया और 100 अशरफी भी वापस नहीं ली। बस अगर तेरे इल्म में भी मैंने ये अमल तेरे खौफ की वजह से किया था तो हमारी मुश्किल आसान कर दे। अल्लाह ताला ने उनकी मुश्किल दूर कर दी और वो तीनों बाहर निकल आए। सही बुखारी। किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। हदीस नंबर 3466। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, कहा हमसे अबुल-ज़नाद ने बयान किया, उनसे अबदाल रहमान ने बयान किया, इन्होंने अबू हरीरा से सुना और इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही थी कि एक सवार इधर से गुजरा, वो उस वक्त भी बच्चे को दूध पिला रही थी। सवार की शान देखकर औरत ने दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे को उस वक्त तक मौत ना देना जब तक कि इस सवार जैसा ना हो जाए। उसी वक्त बक़दरत अलैहि बच्चा बोल पड़ा, ऐ अल्लाह, मुझे इस जैसा ना करना, और फिर वो दूध पीने लगा। इसके बाद एक औरत को इधर से ले जाया गया। इसे ले जाने वाले उसे घसीट रहे थे और इसका मजाक उड़ा रहे थे। मैंने दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे को इस औरत जैसा ना करना, लेकिन बच्चे ने कहा कि ऐ अल्लाह, मुझे उसी जैसा बना देना। फिर तुमने पूछा, अरे ये क्या मामला है? इस बच्चे ने बताया कि सवार तो काफिर व जालिम था और औरत के मुतालिक लोग कहते थे कि तू जिना कराती है, तो वो जवाब देती, हसबी अल्लाह, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, वो मेरी पाक दामनी जानता है। लोग कहते कि तू चोरी करती है, तो वो जवाब देती, हसबी अल्लाह, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है और वो मेरी पाक दामनी जानता है। सही बुखारी। किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। हदीस नंबर 3467। तर्जुमा।
हमसे सईद बिन तलीब ने बयान किया, कहा हमसे इब्न वहब ने बयान किया, कहा कि मुझे जरीर बिन हाजिम ने खबर दी, इन्हीं अय्यूब ने और इन्हीं मोहम्मद बिन सरीन ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, एक कुत्ता एक मुंह के चारों तरफ चक्कर काट रहा था जैसे प्यास की शिद्दत से इसकी जान निकल जाने वाली हो कि बनी इसराइल की एक जानिया औरत ने उसे देख लिया। इस औरत ने अपना मोज़ा उतार कर कुत्ते को पानी पिलाया और इसकी मग़फ़िरत उसी अमल की वजह से हो गई। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। हदीस नंबर 3468। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, कहा हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे हमीद बिन अबदाल रहमन ने और इन्होंने मुआवी बिन अबी सुफियान से सुना, एक साल जब वो हज के लिए गए हुए थे तो मनबर नबी पर खड़े होकर इन्होंने पेशानी के बालों का एक कच्छा लिया जो उनके चौकीदार के हाथ में था और फरमाया, ए मदीना वालों, तुम्हारे उलमा किधर गए? मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बाल जोड़ने की ममानत फरमाई थी और फरमाया था कि बनी इसराइल पर बर्बादी उस वक्त आई जब शरीयत के खिलाफ उनकी औरतों ने इस तरह बाल संवारने शुरू कर दिए थे। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। हदीस नंबर 3469। तर्जुमा। हमसे अब्दुलअज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इब्राहीम बिन साद ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने बयान किया, उनसे अबू सलीमा ने बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुज़श्ता इनतुम में महदस लोग हुआ करते थे और अगर मेरी उम्मत में कोई ऐसा है तो वो उमर बिन ख़त्ताब हैं। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। हदीस नंबर 3470। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन अबी एदी ने बयान किया, उनसे शोबा ने, उनसे क़तादा ने, उनसे अबू सदीक़ नाजी बकर बिन कैस ने और उनसे अबू सईद ख़दरी ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में एक शख्स था जिसने 99 खून नाहक किए थे, फिर वो नादिम होकर मसला पूछने निकला। वो एक दरवेश के पास आया और इससे पूछा, किया इस गुनाह से तौबा कबूल होने की कोई सूरत है? दरवेश ने जवाब दिया कि नहीं। ये सुनकर उसने इस दरवेश को भी कत्ल कर दी और 100 खून पूरे कर दिए। फिर वो दूसरों से पूछने लगा। आखिर इसको एक दरवेश ने बताया कि फलन बस्ती में चला जा। वो आधे रास्ते भी नहीं पहुंचा था कि इसकी मौत वाक़ई हो गई। मरते मरते उसने अपना सीना इस बस्ती की तरफ झुका दिया। आखिर रहमत के फरिश्तों और अज़ाब के फरिश्तों में बाहम झगड़ा हुआ कि कौन उसे ले जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने इस नसरा नामी बस्ती को, जहाँ वो तौबा के लिए जा रहा था, हुक्म दिया कि इसकी नश से करीब हो जाए और दूसरी बस्ती को, जहाँ से वो निकला था, हुक्म दिया कि इसकी नश से दूर हो जा। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि अब दोनों का फासिला देखो, और जब नापा तो इस बस्ती को, जहाँ वो तौबा के लिए जा रहा था, एक बालशत नश से नज़दीक पाया, इसलिए वो बख्श दिया गया। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। हदीस नंबर 3471। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, कहा हमसे अबुल ज़नाद ने बयान किया, उनसे अरज ने, उनसे अबू सलीमा ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज पढ़ी, फिर लोगों की तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, एक शख्स बनी इसराइल का अपनी गाय हान के लिए जा रहा था कि वो इस पर सवार हो गया और फिर उसे मारा। इस गाय ने बक़दरत इलाही कहा कि हम जानवर सवारी के लिए नहीं पैदा किए गए, हमारी पैदाइश तो खेती के लिए हुई है। लोगों ने कहा, सुभान अल्लाह, गाय बात करती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात पर ईमान लाता हूँ और अबू बकर और उमर भी, हालांकि ये दोनों वहाँ मौजूद भी नहीं थे। उसी तरह एक शख्स अपनी बकरियाँ चरा रहा था कि एक भेड़िया आया और रेवर में से एक बकरी उठा कर ले जाने लगा। रेवर वाला दौड़ा और उसने बकरी को भैरये से छुड़ा लिया। इस पर भेड़िया बक़दरत इलाही बोला, आज तो तुमने मुझसे उसे छुड़ा लिया, लेकिन दरिंदों वाले दिन में क़यामत क़यामत उसे कौन बचाएगा जिस दिन मेरे सिवा और कोई इसका चरवाहा ना होगा। लोगों ने कहा, सुभान अल्लाह, भेड़िया बातें करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तो इस बात पर ईमान लाया और अबू बकर व उमर भी, हालांकि वो दोनों उस वक्त वहाँ मौजूद ना थे। इमाम बुखारी ने कहा, और हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने कहा, हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, इन्होंने मुसर से, इन्होंने साद बिन इब्राहीम से, इन्होंने अबू सलीमा से रिवायत किया और इन्होंने अबू हरीरा से और इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही हदीस बयान की। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। हदीस नंबर 3472। तर्जुमा।
हमसे इसहाक बिन नसर ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको अब्दुर्रज़ाक ने खबर दी, इन्हीं मुअम्मर ने, इन्हीं हमाम ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स ने दूसरे शख्स से मकान खरीदा और मकान के खरीदार को इस मकान में एक घड़ा मिला जिसमें सोना था जिससे वो मकान उसने खरीदा था। उससे उसने कहा, भाई घड़ा ले जा, क्योंकि मैंने तुमसे घर खरीदा है, सोना नहीं खरीदा था। लेकिन पहले मालिक ने कहा कि मैंने घर को उन तमाम चीज़ों समेत तुम्हें बेच दिया था जो इसके अंदर मौजूद हूँ। ये दोनों एक तीसरे शख्स के पास अपना मुकद्दमा ले गए। फैसला करने वाले ने इनसे पूछा, क्या तुम्हारे कोई औलाद है? इस पर एक ने कहा कि मेरे एक लड़का है और दूसरे ने कहा कि मेरी एक लड़की है। फैसला करने वाले ने इनसे कहा कि लड़के का लड़की से निकाह कर दो और सोना इन्हीं पर खर्च कर दो और खैरात भी कर दो। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। हदीस नंबर 3473। तर्जुमा। हमसे अब्दुल-अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ओवैसी ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन मुनकदर और उमर बिन उबैदुल्लाह के मौली अबुलज़र ने, उनसे आमिर बिन साद बिन अबी वक़ास ने बयान किया और इन्होंने, आमिर ने, अपने वालिद साद बिन अबी वक़ास को उसामा बिन ज़ैद से ये पूछते सुना था कि तुम के बारे में आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या सुना है। इन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने एक अज़ाब है जो पहले बनी इसराइल के एक गिरोह पर भेजा गया था, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि एक गुज़श्ता उम्मत पर भेजा गया था। इसलिए जब किसी जगह के मुतालिक तुम सुनो कि वहाँ तुम फैला हुआ है तो वहाँ ना जाओ, लेकिन अगर किसी ऐसी जगह ये वबा फैल जाए जहाँ तुम पहले से मौजूद हो तो वहाँ से मत निकलो। अबुलज़र ने कहा, यानी भागने के सिवा और कोई गर्ज ना हो तो मत निकलो। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। हदीस नंबर 3474। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे दाऊद बिन अबी फरात ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन बरीदा ने बयान किया, उनसे यही बिन यमर ने और उनसे उम्मुल मोमिनीन आयशा ने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक अज़ाब है, अल्लाह ताला जिस पर चाहता है भेजता है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको मोमिनों के लिए रहमत बना दी है। अगर किसी शख्स की बस्ती में तुम फैल जाए और वो सब्र के साथ अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाए हुए वहीं ठहरा रहे कि होगा वही जो अल्लाह ताला ने किस्मत में लिखा है, तो उसे शहीद के बराबर सवाब मिलेगा। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। हदीस नंबर 3475। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे लीस ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे रू ने और उनसे आयशा ने कि मखज़ूम या खातून फ़ातिमा बिन तसूद, जिसने ग़ज़वा फ़तह के मौका पर चोरी कर ली थी, इसके मुआमला ने क़ुरैश को फ़िक्र में डाल दिया। इन्होंने आपस में मशवरा किया कि इस मुआमला पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू कौन करे। आखिर ये तय पाया कि उसामा बिन ज़ैद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अजीज़ हैं, उनके सिवा और कोई इसकी हिम्मत नहीं कर सकता। चुनाचा उसामा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में कुछ कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उसामा, किया तो अल्लाह की हुदूद में से एक हद के बारे में मुझसे सिफारिश करता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और खुतबा दिया, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिछली बहुत सी उम्मतें इसलिए हलाक हो गईं कि जब उनका कोई शरीफ आदमी चोरी करता तो उसे छोड़ देते, और अगर कोई कमज़ोर चोरी करता तो इस पर हद कायम करते, और अल्लाह की कसम, अगर फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चोरी करे तो मैं इसका भी हाथ काट डालूं। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। हदीस नंबर 3476। तर्जुमा। हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल मलिक बिन मैसरा ने बयान किया, कहा कि मैंने निज़ाल बिन सबरा हलाली से सुना और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया कि मैंने एक सहाबी इमरू बिन अलास को कुरान मजीद की एक आयत पढ़ते सुना। वही आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके खिलाफ कुरात के साथ में सुन चुका था, इसलिए मैं इन्हीं साथ लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वाक़या बयान किया, लेकिन मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर इसकी वजह से नाराज़ी के आसार देखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दोनों अच्छा पढ़ते हो, आपस में इख्तिलाफ ना किया करो, तुमसे पहले लोग उसे कसम के झगड़ों से तबाह हो गए। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। हदीस नंबर 3477। तर्जुमा।
हमसे उम्र बिन हिफ्स ने बयान किया, कहा हमसे मेरे बाप हिफ्स बिन गैस ने बयान किया, कहा हमसे अमिश ने बयान किया कि मुझसे शकीक बिन सलमा ने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा, मैं गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त देख रहा हूँ। आप बनी इसराइल के एक नबी का वाक़या बयान कर रहे थे कि उनकी कौम ने इन्हें मारा और खून आलूद कर दी। लेकिन वो नबी खून साफ करते जाते और ये दुआ करते, अल्लाह माग़फ़िर लकुमी के अल्लाह मेरी कौम की मग़फ़िरत फरमा, ये लोग जानते नहीं हैं। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। हदीस नंबर 3478। तर्जुमा हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, कहा हमसे अबूना ने बयान किया, उनसे क़तादा ने, उनसे उक़बा बिन अब्दुलगाफ़र ने, उनसे अबू सईद ख़दरी ने और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि गुज़श्ता इम्तिन में एक आदमी को अल्लाह ताला ने खूब दौलत दी थी। जब इसकी मौत का वक्त आया तो उसने अपने बेटों से पूछा, मैं तुम्हारे हक़ में कैसा बाप साबित हुआ? बेटों ने कहा कि आप हमारे बेहतरीन बाप थे। उस शख्स ने कहा, लेकिन मैंने उम्र भर कोई नेक काम नहीं किया, इसलिए जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला डालना, फिर मेरी हड्डियों को पीस डालना और राख को किसी सख्त आंधी के दिन हवा में उड़ा देना। बेटों ने ऐसा ही किया, लेकिन अल्लाह पाक ने उसे जुमा किया और पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया? उस शख्स ने अर्ज़ किया कि परवरिदगार तेरे ही खौफ से, चुनाचा अल्लाह ताला ने उसे अपने साया रहमत में जगह दी। इस हदीस को माज़ अनबरी ने बयान किया कि हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे क़तादा ने, इन्होंने उक़बा बिन अब्दुलगाफ़र से सुना, इन्होंने अबू सईद ख़दरी से और इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। हदीस नंबर 3479। तर्जुमा हमसे मूसा ने बयान किया, कहा हमसे अबूना ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुलमलक ने बयान किया और कहा कि इस रिवायत में फ़ी यौमरा है, सिवा शक के इसके मानी भी किसी तेज़ हवा के दिन के हैं। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। हदीस नंबर 3480। तर्जुमा हमसे अब्दुलअज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहीम बिन साद ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स लोगों को कर्ज दिया करता था और अपने नौकरों को इसने ये कह रखा था कि जब तुम किसी को मफलस पाओ जो मेरा कर्जदार हो तो उसे मुआफ़ कर दी करो, मुमकिन है अल्लाह ताला भी हमें मुआफ़ फरमा दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो अल्लाह ताला से मिला तो अल्लाह ने उसे बख्श दिया। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। हदीस नंबर 3481। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद मसंदी ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम ने बयान किया, कहा हमको मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं हमीद बिन अबदाल रहमन ने और इन्हीं अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स बहुत गुनाह किया करता था, जब इसकी मौत का वक्त करीब आया तो अपने बेटों से उसने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला डालना, फिर मेरी हड्डियों को पीसकर हवा में उड़ा देना। अल्लाह की कसम, अगर मेरे रब ने मुझे पकड़ लिया तो मुझे इतना सख्त अज़ाब करेगा जो पहले किसी को भी उसने नहीं किया होगा। जब वो मर गई तो इसकी वसीयत के मुताबिक इसके साथ ऐसा ही किया गया। अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म फरमाया कि अगर एक ज़र्रा भी कहीं उसके जिस्म का तेरे पास है तो इसे जुमा करके ला। ज़मीन हुक्म बजा लाई और वो बंदा अब अपने रब के सामने खड़ा हुआ था। अल्लाह ताला ने दरियाफ्त फरमाया, तूने ऐसा क्यों किया? उसने अर्ज़ किया, ए रब, तेरे डर की वजह से। आखिर अल्लाह ताला ने उसकी मग़फ़िरत कर दी। अबू हरीरा के सिवा दूसरे सहाबा ने इस हदीस में लफ्ज़ ख़शीतक के बदल मुखाफ़तत कहा है, दोनों लफ्ज़ों का मतलब एक ही है। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। हदीस नंबर 3482। तर्जुमा मुझसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन असमा ने बयान किया, कहा हमसे जवरिया बिन असमा ने बयान किया, उनसे नाफा ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल की एक औरत को एक बिल्ली की वजह से अजाब दिया गया था जिसे इसने कैद कर रखा था, जिससे वो बिल्ली मर गई थी और इसकी सज़ा में वो औरत दोज़ख में गई। जब वो औरत बिल्ली को बांधे हुए थी तो उसने उसे खाने के लिए कोई चीज़ ना दी, ना पीने के लिए, और ना उसने बिल्ली को छोड़ा ही कि वो ज़मीन के कीड़े मकोड़े ही खा लेती। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। हदीस नंबर 3483। तर्जुमा हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, उनसे ज़हीर ने कहा, हमसे मंसूर ने बयान किया, उनसे रबई बिन हराश ने कहा, हमसे अबू मसूद उक़बा बिन इमरू ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों ने अगले पैगंबरों के कलाम जो पाए उनमें यह भी है कि जब तुझ में हिया ना हो तो फिर जो जी चाहे कर। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। हदीस नंबर 3484। तर्जुमा
हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे मंसूर ने बयान किया, इन्होंने कहा मैंने रबई बिन हराश से सुना, वो अबू मसूद अंसारी से रिवायत करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगले पैगंबरों के कलाम में से लोगों ने जो पाया ये भी है कि जब तुझ में हिया ना हो फिर जो जी चाहे कर। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। हदीस नंबर 3485। तर्जुमा हमसे बशर बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, कहा हमको यूनुस ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं सालिम ने खबर दी और उनसे इब्न उमर ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स तकब्बुर की वजह से अपना तहबंद ज़मीन से घसीटता हुआ जा रहा था कि उसे ज़मीन में धंसा दिया और अब वो क़यामत तक यूं ही ज़मीन में धंसता चला जाएगा। यूनुस के साथ इस हदीस को अबदाल रहमान बिन खालिद ने भी ज़हरी से रिवायत किया है। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। हदीस नंबर 3486। तर्जुमा हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे वहीब ने बयान किया, कहा मुझसे अब्दुल्लाह बिन ताउस ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम दुनिया में तमाम इम्तों के आखिर में आए लेकिन क़यामत के दिन तमाम इम्तों से आगे होंगे। सिर्फ इतना फ़र्क है कि इन्हें पहले किताब दी गई और हमें बाद में मिली, और यही वो जुमा का दिन है जिसके बारे में लोगों ने इख्तिलाफ़ किया। यहूदियों ने तो उसे इसके दूसरे दिन हफ्ता को कर ली और निसारी ने तीसरे दिन इतवार को। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। हदीस नंबर 3487। तर्जुमा पस हर मुसलमान को हफ्ते में एक दिन यानी जुमा के दिन तो उसे जिस्म और सर को धो लेना लाजिम है। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। हदीस नंबर 3488। तर्जुमा हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे इमरू बिन मरा ने कहा कि मैंने सईद बिन मुसैब से सुना, आपने बयान किया कि मुआवी बिन अबी सुफियान ने मदीना के अपने आखिरी सफ़र में हमें खिताब फरमाया और खुतबा के दौरान आपने बालों का एक गुच्छा निकाला और फरमाया, मैं समझता हूँ कि यहूदियों के सिवा और कोई इस तरह ना करता होगा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बाल संवारने का नाम अलज़ूर फरेब व झूठ रखा है। आपकी मुराद विसाल फी अलशर से थी, यानी बालों में जोड़ लगाने से थी, जैसे अक्सर औरतें मसनूई बालों में जोड़ किया करती हैं। आदम के साथ इस हदीस को गंदर ने भी शोबा से रिवायत किया है। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अल्लाह ताला का सूरत अल-हिजरात में इरशाद, ए लोगो, हमने तुम सबको एक ही मर्द आदम और एक ही औरत हवा से पैदा किया है और तुमको मुख्तलिफ कौमें और ख़ानदान बना दिया है ताकि तुम बतौर रिश्तादारी एक दूसरे को पहचान सको। बेशक तुम सब में से अल्लाह के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ तर वो है जो ज़्यादा परहेज़गार हो। हदीस नंबर 3489। तर्जुमा हमसे खालिद बिन यजीद अल-काहली ने बयान किया, कहा हमसे अबू बकर बिन अयाश ने बयान किया, उनसे अबू सीन उस्मान बिन आसिम ने, उनसे सईद बिन जबीर ने और उनसे इब्न अब्बास ने आयत वजालनाकम शूबा व कबाइल के मुताल्लिक़ फरमाया कि शूब बड़े कबीलों के मानी में है और कबाइल से किसी बड़े कबीले की शाखें मुराद हैं। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अल्लाह ताला का सूरत अल-हिजरात में इरशाद, ए लोगो, हमने तुम सबको एक ही मर्द आदम और एक ही औरत हवा से पैदा किया है और तुमको मुख्तलिफ कौमें और ख़ानदान बना दिया है ताकि तुम बतौर रिश्तादारी एक दूसरे को पहचान सको। बेशक तुम सब में से अल्लाह के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ तर वो है जो ज़्यादा परहेज़गार हो। हदीस नंबर 3490। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे यही बिन सईद क़ितान ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह ने बयान किया, उनसे सईद बिन अबी सईद ने बयान किया, उनसे उनके बाप ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि एक मर्तबा पूछा गया, या रसूल अल्लाह, सबसे ज़्यादा शरीफ कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार हो। सहाबा ने अर्ज़ किया कि हमारा सवाल इसके बारे में नहीं है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर नसब की रो से अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा शरीफ थे। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अल्लाह ताला का सूरत अल-हिजरात में इरशाद, ए लोगो, हमने तुम सबको एक ही मर्द आदम और एक ही औरत हवा से पैदा किया है और तुमको मुख्तलिफ कौमें और ख़ानदान बना दिया है ताकि तुम बतौर रिश्तादारी एक दूसरे को पहचान सको। बेशक तुम सब में से अल्लाह के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ तर वो है जो ज़्यादा परहेज़गार हो। हदीस नंबर 3491। तर्जुमा
हमसे कैस बिन हिफ्स ने बयान किया, कहा हमसे अबदाल वाहिद बिन ज़ियाद ने बयान किया, उनसे कलीब बिन वाइल ने बयान किया, कहा कि मुझसे ज़ैनब बिन तबी सलमा ने बयान किया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर परवरिश रह चुकी थीं। कलीब ने बयान किया कि हमने ज़ैनब से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ कबीला मुज़र से था। इन्होंने कहा फिर किस कबीला से था? यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला मुज़र की शाख बनी निज़र बिन कनाना की औलाद में से थे। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अल्लाह ताला का सूरत अल-हिजरात में इरशाद, ए लोगो, हमने तुम सबको एक ही मर्द आदम और एक ही औरत हवा से पैदा किया है और तुमको मुख्तलिफ कौमें और ख़ानदान बना दिया है ताकि तुम बतौर रिश्तादारी एक दूसरे को पहचान सको। बेशक तुम सब में से अल्लाह के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ तर वो है जो ज़्यादा परहेज़गार हो। हदीस नंबर 3492। तर्जुमा हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, उनसे अबदाल वाहिद ने कहा हमसे कलीब ने बयान किया और उनसे रबीबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा ख्याल है कि उनसे मुराद ज़ैनब बिन तबी सलमा ही। इन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दबा, हंतम, नक़ीर और मज़फ़त के इस्तेमाल से मना फरमाया था और मैंने उनसे पूछा था कि आप मुझे बताइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ किस कबीला से था? क्या वाकई आपका ताल्लुक़ कबीला मुज़र से था? इन्होंने कहा फिर और किससे हो सकता है? यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ उसी कबीला से था। आप निज़र बनी बिन कनाना की औलाद में से थे। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अल्लाह ताला का सूरत अल-हिजरात में इरशाद, ए लोगो, हमने तुम सबको एक ही मर्द आदम और एक ही औरत हवा से पैदा किया है और तुमको मुख्तलिफ कौमें और ख़ानदान बना दिया है ताकि तुम बतौर रिश्तादारी एक दूसरे को पहचान सको। बेशक तुम सब में से अल्लाह के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ तर वो है जो ज़्यादा परहेज़गार हो। हदीस नंबर 3493। तर्जुमा हमसे इसहाक़ बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमको जरीर ने खबर दी, इन्हीं अमारा ने, इन्हीं अबूज़रा ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इंसानों को कान की तरह पाओगे, भलाई और बुराई में। जो लोग जाहलियत के ज़माने में बेहतर और अच्छी सिफ़ात के मालिक थे वो इस्लाम लाने के बाद भी बेहतर और अच्छी सिफ़ात वाले हैं, बशर्ती का वो दीन का इल्म भी हासिल करें और हुकूमत और सरदारी के लायक इसको पाओगे जो हुकूमत और सरदारी को बहुत नापसंद करता हो। और आदमियों में सबसे बुरा इसको पाओगे जो दोखला को। उन लोगों में एक मुंह लेकर आए, दूसरों में दूसरा मुंह। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अल्लाह ताला का सूरत अल-हिजरात में इरशाद, ए लोगो, हमने तुम सबको एक ही मर्द आदम और एक ही औरत हवा से पैदा किया है और तुमको मुख्तलिफ कौमें और ख़ानदान बना दिया है ताकि तुम बतौर रिश्तादारी एक दूसरे को पहचान सको। बेशक तुम सब में से अल्लाह के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ तर वो है जो ज़्यादा परहेज़गार हो। हदीस नंबर 3494। तर्जुमा हमसे इसहाक़ बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमको जरीर ने खबर दी, इन्हीं अमारा ने, इन्हीं अबूज़रा ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इंसानों को कान की तरह पाओगे, भलाई और बुराई में। जो लोग जाहलियत के ज़माने में बेहतर और अच्छी सिफ़ात के मालिक थे वो इस्लाम लाने के बाद भी बेहतर और अच्छी सिफ़ात वाले हैं, बशर्ती का वो दीन का इल्म भी हासिल करें और हुकूमत और सरदारी के लायक इसको पाओगे जो हुकूमत और सरदारी को बहुत नापसंद करता हो। और आदमियों में सबसे बुरा इसको पाओगे जो दोखला को। उन लोगों में एक मुंह लेकर आए, दूसरों में दूसरा मुंह। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अल्लाह ताला का सूरत अल-हिजरात में इरशाद, ए लोगो, हमने तुम सबको एक ही मर्द आदम और एक ही औरत हवा से पैदा किया है और तुमको मुख्तलिफ कौमें और ख़ानदान बना दिया है ताकि तुम बतौर रिश्तादारी एक दूसरे को पहचान सको। बेशक तुम सब में से अल्लाह के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ तर वो है जो ज़्यादा परहेज़गार हो। हदीस नंबर 3495। तर्जुमा हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे मगीरा बिन अबदाल रहमान ने बयान किया, उनसे अबुल ज़नाद ने, उनसे अरज ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस खिलाफत के मामले में लोग कुरैश के ताबे हैं, आम मुसलमान कुरैशी मुसलमानों के ताबे हैं जिस तरह उनके आम किफ़ार कुरैशी किफ़ार के ताबे रहते चले आए हैं। और इंसानों की मिसाल कान की तरह है। जो लोग जाहलियत के दौर में शरीफ थे वो इस्लाम लाने के बाद भी शरीफ हैं जबकि इन्होंने दीन की समझ भी हासिल की हो। तुम देखोगे कि बेहतरीन और लायक वही साबित होंगे जो खिलाफत व इमारत के उहदे को बहुत ज़्यादा नापसंद करते रहे हों, यहाँ तक कि वो इसमें गिरफ्तार हो जाएं। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अल्लाह ताला का सूरत अल-हिजरात में इरशाद, ए लोगो,
हमने तुम सबको एक ही मर्द आदम और एक ही औरत हवा से पैदा किया है और तुमको मुख्तलिफ कौमें और ख़ानदान बना दिया है ताकि तुम बतौर रिश्तादारी एक दूसरे को पहचान सको। बेशक तुम सब में से अल्लाह के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ तर वो है जो ज़्यादा परहेज़गार हो। हदीस नंबर 3496। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे मगीरा बिन अबदाल रहमान ने बयान किया, उनसे अबुल ज़नाद ने, उनसे अरज ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस खिलाफत के मामले में लोग कुरैश के ताबे हैं, आम मुसलमान कुरैशी मुसलमानों के ताबे हैं जिस तरह उनके आम किफ़ार कुरैशी किफ़ार के ताबे रहते चले आए हैं। और इंसानों की मिसाल कान की तरह है, जो लोग जाहलियत के दौर में शरीफ थे वो इस्लाम लाने के बाद भी शरीफ हैं जबकि इन्होंने दीन की समझ भी हासिल की हो। तुम देखोगे कि बेहतरीन और लायक वही साबित होंगे जो खिलाफत व इमारत के उहदे को बहुत ज़्यादा नापसंद करते रहे हों, यहाँ तक कि वो इसमें गिरफ्तार हो जाएं। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अल्लाह ताला का सूरत अल-हिजरात में इरशाद, ए लोगो, हमने तुम सबको एक ही मर्द आदम और एक ही औरत हवा से पैदा किया है और तुमको मुख्तलिफ कौमें और ख़ानदान बना दिया है ताकि तुम बतौर रिश्तादारी एक दूसरे को पहचान सको। बेशक तुम सब में से अल्लाह के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ तर वो है जो ज़्यादा परहेज़गार हो। हदीस नंबर 3497। तर्जुमा। हमसे मुसद्दिद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे यही बिन सईद क़ितान ने बयान किया, उनसे शोबा ने, उनसे अब्दुल मलक ने बयान किया, उनसे ताउस ने कि उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया इल्ला अल-मुद्फ़ी अल-क़रबी के मुताल्लिक़। ताउस ने बयान किया कि कुरैश की कोई शाख ऐसी नहीं थी जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़राबत ना रही हो और उसी वजह से ये आयत नाज़िल हुई थी कि मेरा मुतालबा सिर्फ़ ये है कि तुम लोग मेरी और अपने क़राबतदारी का लिहाज करो। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अल्लाह ताला का सूरत अल-हिजरात में इरशाद, ए लोगो, हमने तुम सबको एक ही मर्द आदम और एक ही औरत हवा से पैदा किया है और तुमको मुख्तलिफ कौमें और ख़ानदान बना दिया है ताकि तुम बतौर रिश्तादारी एक दूसरे को पहचान सको। बेशक तुम सब में से अल्लाह के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ तर वो है जो ज़्यादा परहेज़गार हो। हदीस नंबर 3498। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे इस्माइल ने, उनसे कैस ने और उनसे अबू मसूद ने बयान किया और इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसी तरफ से फितने उठेंगे यानी मशरिक़ से, और बेवफाई और सख्त दिल्ली उन लोगों में है जो ऊँटों और गायों की दम के पास चलाते रहते हैं यानी रबिया और मुज़र के लोगों में। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अल्लाह ताला का सूरत अल-हिजरात में इरशाद, ए लोगो, हमने तुम सबको एक ही मर्द आदम और एक ही औरत हवा से पैदा किया है और तुमको मुख्तलिफ कौमें और ख़ानदान बना दिया है ताकि तुम बतौर रिश्तादारी एक दूसरे को पहचान सको। बेशक तुम सब में से अल्लाह के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ तर वो है जो ज़्यादा परहेज़गार हो। हदीस नंबर 3499। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, उनसे ज़हरी ने बयान किया, इन्हें अबू सलीमा बिन अबदाल रहमान ने खबर दी और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि फ़ख्र और तकब्बुर उन चीखने और शोर मचाने वाले ऊँट वालों में है और बकरी चराने वालों में नरम दिली और मलामत होती है और ईमान तो यमन में है हिकमत। हदीस भी यमनी है। अबू अब्दुल्ला यानी इमाम बुखारी ने कहा कि यमन का नाम यमन इसलिए हवा के लिए काबा के दाएं जानिब है और शाम को शाम इसलिए कहते हैं कि ये काबा के बाएं जानिब है। अलशामा बाएं जानिब को कहते हैं, बाएं हाथ को अलशमी कहते हैं और बाएं जानिब को अलाशाम कहते हैं। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब कुरैश की फजीलत का बयान। हदीस नंबर 3500। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, उनसे ज़हरी ने बयान किया कि मोहम्मद बिन जबीर बिन मतम बयान करते थे कि मावी तक ये बात पहुंची जब वो कुरैश की एक जमात में थे कि अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन वास ये हदीस बयान करते हैं कि क़रीब क़यामत में बनी कहतान से एक हुक्मरान उठेगा। ये सुनकर मावी गुस्सा हो गए, फिर आप खुतबा देने उठे और अल्लाह ताला की इसकी शान के मुताबिक हम्द व सना के बाद फरमाया, लोगो, मुझे मालूम हुआ है कि बाज़ लोग ऐसी अहादीस बयान करते हैं जो ना तो कुरान मजीद में मौजूद हैं और ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हैं। देखो, तुम में सबसे जाहिल यही लोग हैं। उनसे और उनके ख़यालात से बचते रहो जिन ख़यालात ने उनको गुमराह कर दी है। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है कि ये खिलाफत कुरैश में रहेगी और जो भी उनसे दुश्मनी करेगा अल्लाह ताला इसको सुरंगों और ऊंधा कर देगा जब तक वो कुरैश दीन को कायम रखेंगे।